ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی آسان ہے، ایسے ہے جیسے الف بے ہوتا ہے، ایک جمع دو ہوتا ہے، بہت ہی آسان ٹاپک ہے۔ جیسے ایڈیشن آف میٹریسز، کالموں کی جمع۔ یہ کالموں کو جمع کیسے کرتے ہیں؟ کالموں کو جمع کرنے کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ہم مرتبہ کا مطلب ہے سیم آرڈر، یعنی کہ ایک کالم ہے، اس کی قطاریں ہیں دو، اگر وہ دوسرے کالم میں جمع ہو رہا ہے تو اس کی قطاریں بھی دو ہونی چاہیے ایک، اور اگر اس کے کالم دو ہیں تو اس کے بھی دو ہونے چاہیے، یعنی کہ قطاروں کی تعداد اور کالموں کی تعداد دوسرے کالم کے قطاروں اور کالموں کی تعداد کے برابر ہونی چاہیے۔ چلیں کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک کالم اے ہے، اس کے ارکان ہیں 2 3 4 -5، اور ایک کالم ہے بی، اس کے ارکان ہیں 1 -2 6 4۔ جمع کرتے ہیں اے جمع بی۔ جمع کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اب یہ دیکھیں نا، اس کی بھی دو قطاریں ہیں، اس کی بھی دو قطاریں ہیں، دو کالم ہیں، دو کالم ہیں۔ جیسے ایک کالم یہ بار بار سمجھا رہا ہوں کالموں کے بارے میں، قطاروں کے بارے میں، C1 C2 R1 R2۔ یہ پچھلے ٹاپک جو میں نے لیکچر دیے ہوئے ہیں وہ آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ C1 C2، اب دو قطاریں، دو کالم، دو قطاریں، یہ ہوتا ہے مرتبہ کالم۔ جمع کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے 2 3 4 -5، کالم اے جمع کالم بی، 1 -2 6 اور جمع 4۔ جمع کرتے ہیں، جب جمع کریں گے تو جو بریکٹس لگائیں گے، بڑی بریکٹ سے تھوڑا سا بڑا کر دیں گے کیونکہ دونوں اکٹھے جمع کر دیں گے۔ اب جمع کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو اس کالم میں ہے، اس سریکی میں ہم کہتے ہیں چونڈ، جو اس چونڈ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کالم کی بھی اسی چونڈ میں وہی مطلب اسی سے جمع کریں گے۔ یعنی یہاں پر ہے 2 تو یہاں پر بھی 1 ہے، تو 2 اور 1 کو آپس میں جمع کریں گے، یعنی کہ 2 ان کے آس پاس بریکٹ ڈال دیں گے تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر 3 ہے اور یہاں پر -2 ہے، تو لکھیں گے 3 جمع، اس کے ساتھ -2 ہے کیونکہ ہم نے بریکٹس میں لکھنا ہے، بریکٹس میں لکھنے کی صرف یہی وجہ ہے، دیکھیے جمع منفی اکٹھے نہیں ہوتے، تو یہ سب سے مین وجہ بریکٹس میں لکھنے کی چیز۔ ہمارے پاس ہے 4 اور اس چونڈ میں 6 ہے، اور یہاں پر -5 ہے، یہاں پر جمع کا 4 ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے اپنے کارنر میں، اپنے اپنے کونوں میں جمع کرنا ہے، اکٹھا نہیں کرنا۔ اس کارنر میں ہمارے پاس جواب آ رہا ہے جمع 2 اور جمع 1۔ اگر بریکٹ ہٹا دیں تو میں ڈائریکٹ لکھ دوں تو جواب آئے گا 2 اور 1 کتنا آئے گا 3۔ یہ جمع کا 3 ہے، یہ جمع منفی 2 ہو جائے گا، 3 میں سے 2 گیا، جواب آیا 1۔ 4 اور 6 بن گئے 10، -5 میں سے جمع کا 4 گیا، جو بڑا ہوتا ہے اس کی علامت آتی ہے، اور -5 بڑا ہے، علامت آئے گی -1۔ یہ ہمارے پاس ایک جواب آ گیا A جمع B۔ ٹھیک ہے، یہ ہے 2 مرتبہ 2 والے کالم، ان کی ایڈیشن۔ اب آتے ہیں جی 2 مرتبہ، یعنی کہ 2 قطاریں ہیں اس کی اور اس کی، کالم 3 ہے، کیا B کالم جس میں جمع ہو رہا ہے کیا اس کے ساتھ اس کا مرتبہ سیم ہے؟ دیکھیں 2 قطاریں ہیں اور 3 کالم، اٹ مین یہ جمع ہو سکتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں۔ A جمع B، اپنی اپنی کارنر میں، اپنے اپنے کارنر میں جمع کرنا ہے۔ یہاں پر 2 ہے، سوری پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں، 2 3 0 1 0 6 جمع -2 3
4 1 2 और 3। ठीक है जी, इनको जमा करते हैं अपने अपने कार्नर में। बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान सवाल 9th की मैथमेटिक्स में ये है। 2 कार्नर में कौन पड़ा है? ये पड़ा है 2 ब्रैकेट जमा -2 ब्रैकेट। इस कार्नर में आ गया। यहाँ पर कौन ये इनको आपस में करेंगे, थोड़ा सा फासले ताकि मिक्स अप ना हो। 3 जमा ब्रैकेट का 3 इस तरह है। यहाँ पर 0 पड़ा है, ये 0 ब्रैकेट जमा 4 ब्रैकेट। ये ब्रैकेट डालने का मकसद ये होता है कि अगर किसी का तो जमा मनफी आता है तो वो मिक्स अप ना हो। यहाँ पर 1 है ब्रैकेट और जमा 1, 0 है ब्रैकेट जमा 2 है 0 की जगह पे तो 2 के साथ जमा होगा। 6 है तो 6 जो है 3 के साथ जमा होगा। इसका मैं डायरेक्ट जवाब लिख देता हूँ क्योंकि ये बच्चों वाली बातें हैं, बार बार समझाने में टाइम जाए होगा। 2 जमा मनफी 2 मनफी 2 जवाब आएगा 0। 3 जमा का 3 जवाब आएगा 6। 0 में 4 जमा हुआ जवाब आया 4। 1 में 1 जमा हुआ जवाब आया 2। 0 में 2 जमा हुआ जवाब आया 2। 6 में 3 जमा हुआ जवाब आया 9। तो ये आपके पास जवाब आ गया ए। जमा करते हुए कॉलम की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि ये बात आपने याद रखनी है, अगर 2 कॉलम हम मर्तबा नहीं होंगे तो वो कभी भी जमा नहीं होंगे और वो गलत होगा। अगर हम मर्तबा होंगे तो वो जमा होगा। चलो जी, ये हमारे पास जवाब आ गया। आपको पता होना चाहिए कि जो एडिशन ऑफ कॉलम है ये कम्यूटेटिव भी होती है, ये खसियत मुबादला भी रखती है। तो ये हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसके बाद है जी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कॉलमों की नफी। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को होता है कॉलमों की तफरीक, मनफी करना, एक कॉलम में से दूसरे कॉलम को मनफी करना। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें ये होता है कि पहली कंडीशन जो है वो ये है कि दोनों कॉलम एक दूसरे में से नफी हो रहे हैं, वो हम मर्तबा होना लाजमी है। ये बात याद रखना कि जो 2 कॉलम आपस में जमा हो रहे हैं वो आपस में हम मर्तबा होने चाहिए। कॉलमों और कतारों की तादाद आपस में कॉलमों और कतारों बराबर जमा करते हैं। हमारे पास है ये 2 कॉलम दिए हुए हैं, इसकी 2 कतारें हैं, 2 कॉलम हैं, 2 कतारें हैं, 2। इट मीन ये जमा हो सकते हैं। जमा करते हैं ये जब सॉरी हम मनफी पढ़ रहे हैं, ये मनफी करते हैं। एक कॉलम है हमारे पास 1 3 5 4, दरमियान में आएगा नफी 2 3 5 6, इनको मनफी करेंगे। ए मनफी बी, इंतहाई आसान सवाल है। 1 में से 2 गया, लिखते हैं जी 1 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट। मैंने बार बार आपको समझाया, ब्रैकेट इसलिए डालते हैं ताकि हिस्सों की जो इलामतें हैं वो आपस में मिक्सअप ना हो, क्योंकि किसी हिस्से के पास कोई ना कोई इलामत जरूर होती है। 5 -5 4 -6। चलो अब मैं ये हटा के भी देख लेते हैं। 1 -2, इसका जवाब क्या है? 1 -2, 1 ब्रैकेट से डालें, ये नेक्स्ट स्टेप नीचे करना है, मैं यहीं पर कर रहा हूँ। 1 -2 का जवाब आएगा हमारे पास 1, ऐसे। लेकिन किसका 1? जमा का 1 मनफी का 1, क्योंकि 2 जो है वो बड़ा है, इलामत मनफी है। 3 में से 3, ये 3 की ब्रैकेट हटा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 6 गया मनफी का 6, तो मनफी का 2 जवाब आएगा। तो ये हमारे पास जवाब आया A -B। ठीक है जी। अब ये तो हो गया 2x2 के मर्तबे वाले जो सवाल है, 2 कतारें 2 कॉलम। अब पढ़ते हैं 2 कतारें और 3 कॉलम। इसकी 2 कतारें हैं 3 कॉलम, इसकी भी 2 कतारें हैं 3 कॉलम। इंतहाई आसान सवाल है।
ए मनफी बी। पहले हम ए को लिख लेते हैं 0 2 3, थोड़ा थोड़ा वक्फा दिया करें। मनफी 4, यहाँ पर मनफी बी क्या है 2 3 4 5 6 एंड 7। इनको आपस में मनफी कर लेंगे। मनफी करना पहले तरीके से जा दिया है। 0 में से 2 गया, 0 ब्रैकेट में मनफी 2 ब्रैकेट में, फिर थोड़ा सा वक्फा 2 ब्रैकेट में मनफी इंटू 3 ब्रैकेट, और फिर इस चुन में, इस कार्बन में, इस कोने में 3 है और इसमें 4 है। बार बार ये चीज समझाने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो जाए। हम मनफी कर रहे हैं, 3 में से मनफी 4 जाएगा। अब ये देखिए मैं ब्रैकेट लगाने का मकसद यहाँ पर आपको समझ आ गया। मनफी 1 ब्रैकेट में और यहाँ पर मनफी तो वैसे लगना है। और अगला है जी इस कोने में 5 है, तो ये 5 है। 4 है ब्रैकेट में, इस कोने में 6 है, तो मनफी का 6 है। 5 है इस कोने में, इसमें 7 है, 5 और मनफी का ये 7 है। इसका जवाब आएगा हमारे पास 0 में से 2 गया, मनफी का 2 जवाब आएगा। इंतहाई आसान सवाल, मनफी 2 में से मनफी 3 गया। एक स्टेप मैं नहीं करता, आपको समझ आ गई होगी। 2 में से मनफी का 3 जाएगा तो मनफी 1 जवाब आएगा। 3 में से मनफी 4 जाएगा तो भी मनफी 1 आएगा। मनफी 1 मनफी 5, इसका जवाब आता है मनफी 6। मनफी मनफी जमा होता है। उसके बाद है 4 मनफी 6, 4 में से 6 गया तो जवाब आया मनफी 2, और 5 में से 7 गया तो जवाब आया मनफी 2। ये हमारे पास है जी कालमों की तफरीक, जिसे आप कहते होते हैं इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने आज सवाल किए हैं जी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जमा में और मनफी में खसियत मुबादला और खसियत तलाज़म, जिसको अंग्रेजी में कहते होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हम उस पे जो है वो नेक्स्ट हम वही हल करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई?